Hello everyone, welcome to my channel. We are doing pediatrics. We are targeting pediatrics for today. It's already 5 o'clock of evening and I could not, I actually lost my track on studies because I had a really bad night duty yesterday. So I just gave myself a bit of rest and now we are starting again. So today my target is to complete pediatrics today with MCQs and all the most happy topics. So let's get started with acute diarrhea. All you need to know along with rotavirus and rota vaccine concised. Okay, so let's get started. First thing first, what is acute diarrhea? Acute diarrhea means more than three loose stools per day. Okay, in babies, more than three loose stools per day for less than 14 days. If it's more than 14 days, it must be persistent diarrhea of infective etiology. Okay, now what is the under 5? The under 5 most common cause of diarrhea is rotavirus. Okay, so under 5 most common cause of diarrhea is rotavirus. What is rotavirus? It is segmented double-stranded RNA virus, and the virulence factor here is NSP4. That is a protein factor, I guess. Yeah, it's a protein. Enterotoxin, which is enterotoxin in nature, that causes secretory diarrhea by blocking the chloride channels. Okay, that's the mechanism by which it causes secretory diarrhea in pediatrics patient. Okay, most common bacteria involved in causing acute diarrhea post rotavirus is ETAC. Okay, ETAC. Then that's the E. coli. Okay, that's E. coli. Then उसके बाद है okay, the most important topic that you need to know in pediatrics acute diarrhea is the classification. That is, what is no diarrhea, some diarrhea, and severe diarrhea. According to this, you have to classify the patients in 3 categories, and उसके बाद you have to go for the management. This is a very important topic in pediatrics because acute diarrhea causes dehydration, which can be only corrected by giving fluids, enough amount of fluids, calculated enough amount of fluids that can save the life of the patient. Okay, so yeah, rotavirus के बारे में बात कर ली. हाँ, blood, if it's the blood is present or the bloody mucus type of diarrhea is there, the causative agent is Shigella flexneri. Okay, so let's get started. Okay, what is the investigation here? Okay, investigation here is ELISA stool antigen detection. Okay, ELISA stool antigen detection in case of rotavirus. Okay, this is some sort of micro connected here. Yeah, now what is no diarrhea? When the baby is well alert, when the patient is well alert, eyes are normal, thrust is normal. When you give water, he will drink normally. Like, okay, no eagerly, he will drink normally. Skin pinch test is less than 1 second. What is skin pinch test? You must, if you are a post intern like me, you must have seen that pediatrics come to the rounds and they hold the baby like this, and uske baad they pinch the baby over umbilical area to see what is the pinch test, how is the pinch test going back. Like this is going back less than 1 second, so matlab, yeah, the skin is well hydrated, so that's why there is no dehydration in the patient. Okay, then uske baad, okay, when there is no dehydration, so what do you think, what can we do? We can obviously give oral fluids because he is tolerating oral fluids, so we'll give oral fluids. That is just some amount which has to be given by this. That is 100 ml per stool and 100 to 200 ml per loose stool, less than 2 years and 2 to 10 years. Okay, I think this is not important because they won't ask this category only. Just you should know कि oral fluids इसमें देने हैं और कुछ नहीं करना है. अगर 100 ml पर लूज स्टूल, मतलब समझ एक बार बच्चा जा रहा है तो उसको 100 ml देना है ऐसा. और ये 2 साल से कम बच्चे को है, 2 से ज़्यादा, अगर ज़्यादा एज हो गई तो ज़्यादा देंगे ना फ्लूइड. ठीक है, इसके लिए से. नेक्स्ट, सम डिहाइड्रेशन में क्या है कि बच्चा थोड़ा रेस्टलेस हो जाएगा, इरिटेबल हो जाएगा, ही विल क्राई, आईज हो जाएंगी संकन, थोड़ी सी आई अंदर चली जाएगी. उसके बाद है थर्स्टी, ड्रिंक फास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो है हमेशा एमसीक्यू में क्लू में दिया जाता है. एमसीक्यू क्लू कि भाई इसको पानी दे रहे हैं ना तो ये ड्रिंक फास्ट कर रहा है, तो हमको ये लगा भाई पानी तो पी रहा है ना, तो इट मे बी दिस वन, बट नो, इट इज़ इन द सेकंड सम डिहाइड्रेशन. ओके, और स्किन पिच टेस्ट जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा. इसमें कैसे विद इन 1 सेकंड में आ जाता था, इस विद इन 1 to 2 सेकंड में आएगा. ठीक है, दिस वुड रिक्वायर्ड अ गुड अमाउंट ऑफ एक्सपर्टाइज टू सी के कैसे करते हैं. पीडियाट्रिक्स डू इट वेरी फास्ट. लाइक मैं तो देखती रह जाती हूँ कि भाई कैसे फटाक से पता लग गया कि ये सम है, नो है कि सीवियर है. सो या, एक्सपर्टाइज
तो चाहिए चाहिए, नेवर माइंड। देन उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट क्या है सम का, ऑब्वियसली देखो भी हम थोड़ा इरिटेबल है, ड्रिंक कर रहा है, ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, ओरल अगर टॉलरेट कर रहा है, ओरल ले रहा है तो ओरल ही देना है उसको, दैट इज 75 ml पर kg ओवर 4 आवर्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज, ये तो आना ही चाहिए, यू हैव टू रिमेंबर दिस, यू हैव टू मेमोराइज इट विथ मी राइट नाउ। 75 ml पर kg ओवर 4 आवर्स, 75 ml पर kg 4 आवर्स फॉर सम डिहाइड्रेशन, जिसमें 1 to 2 सेकेंड होता है ये थर्स्टी और ड्रिंक फास्ट, ये याद रखना है, और आइस संकन। देन द थर्ड स्टेज इज सीवियर डिहाइड्रेशन। सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया, बच्चा हो जाएगा डल, दैट इज लेथार्जी हो गया, ठीक है, लेथार्जी है कि याद रखना है, अनकॉन्शियस जैसा हो जाएगा, संकन आइज हो जाएंगी, ड्रिंक पुअरली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ही वुड नॉट बी एबल टू ड्रिंक, और इवन इफ ही शी इज ड्रिंकिंग तो अच्छे से ड्रिंक नहीं कर रहा होगा, मतलब ही इज नॉट इवन, ही इज सो मच डिहाइड्रेटेड दैट ही इज नॉट इवन ड्रिंकिंग प्रॉपरली और नॉट एबल टू ड्रिंक द वाटर। ओके, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो है ये 2 सेकेंड से ज़्यादा, मतलब 2 सेकेंड जितना हो जाएगा स्किन पिंच टेस्ट, ठीक है। अभी देखो इसमें तुमको ये क्लू दिया जाएगा, दैट इज ड्रिंक पुअरली एंड नॉट ड्रिंकिंग एट ऑल, समथिंग लाइक दैट, और अनकॉन्शियस लेथार्जी पेशेंट। इसमें तुमको फ्लूइड कैसे देना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे फ्लूइड देना है हमको, 100 ml पर kg, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, मेमोराइज विद मी, 100 ml पर kg, यहाँ पे 75 था, ठीक है, यहाँ पे सब में तो 75 बहुत है, लेकिन यहाँ पे 100 ml पर kg, अगर 1 साल से कम का बच्चा है तो 30-70, और 1 साल से ज़्यादा है तो 30-70 में डिवाइड करेंगे, और 30-70 इज 30 ml पर kg, 70 ml पर kg, ठीक है, दोनों में है ऐसे डिवाइड करना है, और अवरली बेसिस पे ध्यान देना है कि इतना फ्लूइड इतने आवर्स में जाना चाहिए। सो रिमेंबर 100 ml per kg we have to give according to the weight, we have to give 100 ml per kg if it's if the age of the child is less than 1 year, so we have to give we have to divide in 30 ml per kg or 70 ml, that's the criteria decided, जो हमको याद रट्टा मानना ही है, 30 ml per kg विद इन 1 आवर जाना चाहिए, और 70 ml per kg विद इन 5 आवर्स जाना चाहिए, ये तो याद करना पड़ेगा, पता नहीं मैंने कैसे याद किया हुआ है, नहीं किया जो कि आप मेरे साथ कर दो, दैट इज 30 ml पर kg 1 आवर 5 आवर, ऐसे याद रखो, ठीक है, लेस देन 1 आवर, मोर देन 1 आवर, तो 1.53 आवर्स, ओके, 1.53 आवर्स, ऐसे 30-70 बिकॉज सीधा सीधा एमसीक्यू में पूछा जाता है, एकदम ब्रेड बटर क्वेश्चन हो जाता है ये, ठीक है, तो तुमको यही याद नहीं होगा तो कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो ये है, वापस देखते हैं, 100 ml पर kg जाना चाहिए मोस्टली IV फ्लूइड्स 1 ईयर से लेस और मोर देन 1 ईयर, 30 ml 70 ml 30 ml 70 ml 1.53 1.53 1.5 एंड 3, ओके, दिस इज द स्टफ, ओके। उसके बाद हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने देखा कि अंडर 5 मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दिस इज रोटा वायरस, ओके, तो लेट्स स्टडी समथिंग अबाउट रोटा वैक्सीन, ओके, ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हाँ, यस दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस गेट्स यू अ क्वेश्चन, दैट इज कितना जिंक देना है, अगर डायरिया है तो जिंक तो देना ही पड़ेगा ना, फॉर एपिथेलियल रिफॉर्मेशन के लिए देना पड़ता है, इंटेस्टाइन का एपिथेलियल ग्रो करने के लिए यू हैव टू गिव जिंक, तो 14 डेज तक देना है, इफ द बच्चा इज लेस देन 6 मंथ्स, इफ द बच्चा इज मोर देन 6 मंथ्स, इफ द बच्चा इज लेस देन 6 मंथ्स तो 10 mg देना है, इफ मोर देन 6 वेरी इजी 10-20, 6 मंथ्स तक कट ऑफ, 6 मंथ्स याद रखना है आपको, और 10-20 याद रखना है, छोटा है तो 10 दो, और बड़ा है 6 महीने से तो 20 दे दो, सो दिस डन, तो ये हमारा एक RX हो गया। उसके बाद तुम वो ORS वगैरह देना है, देखो यहाँ पे तुम ORS दोगे, यहाँ पे भी तुम उसको ORS वगैरह दे सकते हो, ठीक है, फ्लूइड ही देना है मोस्टली, ठीक है। उसके बाद क्या है, और इसमें फ्लूइड क्या होता है, RL प्लस, यहाँ पे लिख देती हूँ, RL प्लस 5% डेक्सट्रोज इज अ फ्लूइड ऑफ चॉइस, ठीक है, RL प्लस 5% डेक्सट्रोज इज अ फ्लूइड ऑफ चॉइस हियर, ओके। नेक्स्ट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ओके, दिस इज do you know SAM in pediatrics, severely acute malnourishment in children's or in infants, okay, in babies, so इसमें हम एक स्पेशल टाइप का ORS देते हैं, तो उसका सब कुछ यहाँ पे दे रखा है कॉन्सेंट्रेशन, इसको बोलते हैं रेजोमाल, ठीक है, माल नरिश बेबी को जो हम ORS देते हैं ना, दैट इज रेजोमाल, सो उसमें एक तो नंबर्स याद रखने हैं, सीधे सीधे नंबर्स MCQ में पूछे गए हैं इसलिए बता रही हूँ, सो मेरे साथ याद करो, 125 ग्लूकोज सिंपल, 70 क्लोराइड, ठीक है, 45 सोडियम क्लोराइड, 70-45 सोडियम क्लोराइड, ठीक है, 125 40 40 के, ऐसा याद रखो, 40,000 मैंने किसको दिए, 40 के 7 C के दैट इज 7 साइट्रेट और 3 मैग्नीशियम, ठीक है, ऐसे करके याद रखो, रट्टा मारना है।
अभी क्या करना है, अभी हाँ, अभी देखते हैं वैक्सीन वगैरह के बारे में फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये है अपनी रोटा वैक्सीन, रोटा वायरस की वैक्सीन आती है जो कि अंडर 5 सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है डायरिया का, तो उसके बाद हम रोटा वायरस की वैक्सीन देते हैं। तो रोटा वैक्सीन यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे, वैक्सीन, ठीक है। अभी देखो इसमें क्वेश्चन, नाउ द ट्रेंड हैज बिकम टू आस्क अबाउट द डिलेड इम्यूनाइजेशन, नॉट अबाउट द प्रॉपर immunization. They ask their favorite topic is now asking about delayed immunization, that if a 2-year old baby has come and he has not been vaccinated, what vaccines you will give. So you have to know कि 2 साल का बच्चा है तो उसमें तुम कौन से वैक्सीन दे सकते हो। तो here is a list of the vaccines which we have to give, which can be given till 1 year of life. Okay, so if 2 साल का बच्चा है तो तुम ये दे सकते हो, नहीं दे सकते, बिकॉज ऑलरेडी 2 साल का हो चुका है। अगर वो 7 महीने का बच्चा तुम्हारे पास आता है अनवैक्सीनेटेड, तो यू विल गिव ऑल दिस वैक्सीन। ओके, सो लेट्स रिवाइज। BCG वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ऑफकोर्स ये तो साथ में जाएंगी। IPV, हाँ, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, रोटा वैक्सीन, पेंटा वैक्सीन, PCV, ठीक है, ये 1 तक दे सकते हैं 1 ईयर। तो पेंटा और रोटा इसमें आता है, पेंटा, रोटा, PCV, बराबर। और IPV, हेपेटाइटिस बी और BCG वैक्सीन, दिस कैन बी गिवन टिल 1 ईयर ऑफ लाइफ। ओके, नाउ एक क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज दैट क्वेश्चन? Yes, IPV. What is the other name of IPV? Is it Salk or Sabin? I want you to check it out because this can be asked कि भाई Salk कैसे देती हैं, Sabin कैसे देनी है। तो for that you need to know कि what is Salk and what is Sabin. Okay, ठीक है। It is basically the another name of IPV and OPV. Now we have to figure out कि कौन सा कौन क्या है, ठीक है। That's a question for you. Now, ओके, रोटा वैक्सीन के बारे में डिलेड 1 ईयर तक, ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी नॉट एप्लीकेबल ओपन वायल पॉलिसी। ओके, डू यू नो ओपन वायल पॉलिसी दैट इज फॉर एलिजिबल फॉर 28 days. इफ यू ओपन द वैक्सीन लाइक day 0, so you have to consume it within 28 days. If it is more than 28 days, then you have to discard it. ओके, सो इधर कोई एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, मतलब यू कैन यूज इट ऐसा। नॉट एप्लीकेबल ओपन वायल पॉलिसी, इसमें कोई एप्लीकेबल नहीं है। दैट इज मीसल्स, BCG, जापानीज एंसेफेलाइटिस, रोटा, कोविड, येलो फीवर, ठीक है, ये सब येलो फीवर, कोविड, रोटा, जापानीज एंसेफेलाइटिस, BCG एंड मीजल्स वैक्सीन, ठीक है, MBJ, रोटा, कोविड, येलो फीवर। नाउ इट इज अ टाइप ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन कि इट इज अ टाइप ऑफ लाइव वैक्सीन, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन का टाइप है। और इसमें रिस्क क्या होता है? इसमें रिस्क होता है इंटरसेप्शन रिस्क हो छामा। ओके, सो इंटरसेप्शन याद रखना है, लाइव है ये, ओपन वायल पॉलिसी देखना है, डिलेड 1 ईयर, ठीक है। हाँ, कब कब दिया जाता है? 6, 10, 14 दिया जाता है। रोटोवैक इज द नेम। ओके, रोटोवैक इज द नेम एंड 5 drops दिया जाता है। 2 बूंद जिंदगी की इस फॉर ओरल पोलियो वैक्सीन, 5 बूंद जिंदगी की इस फॉर डायरिया, ठीक है। और ओरल अगर, हाँ, 2.5 ml लिम्फोजेनाइड वैक्सीन का टाइप है करके, उधर उधर वो 2.5 ml होता है। और दूसरा आता है रोटोटैक वैक्सीन, दैट इज अ पेंटावेलेंट वैक्सीन, दैट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, दिस इज इंपॉर्टेंट। 6 10 14 पे रोटा वैक दिया जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल वी नीड टू नो अबाउट रोटा वैक्सीन, रोटा वायरस एंड एक्यूट डायरिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेट अस फोकस इट अगेन, दैट इज, इधर क्या था 75 ml पर केजी, ठीक है, इधर क्या था 75 ml पर केजी। कितना था? ओरल सबसे ज़्यादा देना है। इफ अगर IV टॉलरेट, मतलब ओरल नहीं टॉलरेट करता, देन यू हैव टू गो फॉर IV, ठीक है। ग्रुप मतलब क्या लिक्विड ऑफ चॉइस है, दैट इज RL प्लस 5% एक्सट्रोज बेबीज में, ठीक है। और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे क्या था? 100 ml पर केजी, ठीक है। इसमें क्या था? 1 और लेस देन 1 और 1, उसमें क्या था? हमने ये यहाँ नीचे याद रखा था 1, 5, 1.5 and 3. Okay, so 30, 70, 30, 70, 1, 5, 1.5 and 3. Okay, this gives us a gist of everything you need to know about acute diarrhea. Thank you so much for listening to me. Bye.